Namaste and welcome to my channel. This is Abhinav Prakash. And today we have with us Shubhendu Anand and Ayush Anand, who both are advocates in the Supreme Court of India and also partners in the law firm Atharva Legal based out of Delhi. And today we are going to discuss the issue of regulation of OTT platforms and the social media platforms. So welcome Shubhendu and Ayush. Namaste, sir. And thanks for giving your time. So Thank you. let me start with the background itself. What are the issues related to the OTT platforms and the social media and their regulations? So, Shubhendu, would you like to give a background to this? Yes, thank you, Abhinav. The problem with social media arises because the social media tries to start censoring content. Till the time it is just an medium where one can express himself or herself and put out a content, it is an intermediary. So it has no role to play as to what somebody is writing and somebody is not writing on the platform. As soon as as soon as somebody from the intermediary, that is Twitter or Facebook or other social media, as soon as they start censoring the content, that this is what should go on the media, this is what should not go on the media, I think that is where their role as an intermediary, which uh, enjoys immunity, ends. Why I'm saying so? Because the moment you start censoring what is being written and what is being displayed on the platform, you are towing a line which is not neutral. One. Two, uh, you are also in that process trying to manipulate the voices of one section and trying to promote or not promote the voices of the other by regulating. Um, there are contents that are offensive in nature. There are contents which are pornographic in nature. There are rape imageries, child pornography. All these things also get uploaded on these media, and for that they have their team which controls and restricts the outflow of such content. But as soon as you start censoring content which is political in nature, which we have seen in the recent years, your role as an intermediary which enjoys immunity ends there. Because then you become a media platform. Now, an editor in a media organization decides what is going to be published and what is not going to be published. In that scenario, if we equate social media platforms the same way, I think um, they are towing a line which is identical to mainstream media. Now, we often come across this thing that something happens in the world, some political movements happen, some political um, changes take place. We get a notification from Twitter without even having subscribed to such a news. We get a notification that so and so, such and such things have happened, or such and such political statements have been given by any political person. Now, that is one statement which is by a political. Suppose there is one statement by a political person, he gives such a statement. It flashes on your screen, on your computer screen or your mobile phone screen, and you get the news that okay, such thing has happened. But if the line of neutrality has to be told by these platforms, they should also then broadcast what is being said against it, or what is the counter to such a narrative, but that we do not get to see. So the news is being curated by these platforms to send to masses. Now, curating the news again is a problematic thing, because at one hand you claim that you are just a content broadcasting platform. You do not curate content. But here what we are seeing is that content is being curated. That is one. The second thing which has recently happened is that these social media platforms have tried to censor or block the tweets or the handles of political people or even general people who are politically woke.
Now, in that situation, your role as a neutral platform just for the dissipation of information ends. Uh, I remember our Home Minister, Mr. Amit Shah's account was recently was recently banned or something. I mean, his account was not accessible to public at large. So that was one situation. That the Home Minister of a country, Or they just took down the picture, his DP out there. yes, the the Home Minister, the picture of the Home Minister of the country is taken down from his official ID, which is verified, and he's the Home Minister of India. For God's sake, I mean, you have to understand that taking down his picture from his ID is problematic. They blocked permanently the account of serving President of the United States, Donald Trump. I mean, in which country, in which world are we living in, wherein these platforms, which are not media platforms, I mean, as per their uh, mandate, they call themselves not media platforms, but at the same time, they are acting as media people, True. trying to curate information. So those are social media platforms. What about the OTT platforms like Netflix? Coming back to OTT, what is the issue there? see, the problem with OTT is that they too enjoy immunity in the way social media platforms enjoy immunity. Under Section 79 of the Information Technology Act, they also claim to be, they are seeking immunity by claiming themselves to be intermediaries, wherein I am a content generator, I'm putting my content on those platforms, and they are uh, sending it to the masses. Now, the problem there is that these content aggregators or content aggregators are also the content generator. They have also become content generators. Now you have Amazon originals or Netflix originals. I don't know. I don't watch OTT, so I have no idea what the terminologies are. But they have their original uh, productions. Now these productions go without any check established by the government or the statutory authorities. Anything that goes on cable TV through DTH or cable, or anything that is shown to us in cinemas go through proper checks that are available in the country. For the cinemas, there is Cinematograph Act, which decides that whether the content that is going in the picture halls or on the internet is who should watch it and what should be the age restriction and whether it is normal to be broadcasted in on television or whether. Similarly, for television shows and for other uh, content that we see on television, there is Cable TV Regulation Act, which again acts as a check as a check parameter for every content that goes on there. Now, every content on OTT platforms, which are not through the cinema, like there is a cinema which is already produced that goes on the OTT, no problem at all, because it has already passed the checks uh, put in by the government or the statutory bodies. But anything that is newly produced, or suppose I am someone who is independently producing something and putting it on the OTT platforms, and it then goes and gets broadcasted everywhere, or these OTT platforms through their own production units called Amazon Originals or Netflix Originals, if they produce something and directly put it on their platform for the people to watch it, they bypass all the laws available in the country. What do we do in that situation? It is in this regard, I believe that there should be a regulation for checking the content that is being put independently over there or through the intermediaries uh, by their own production units, so that what goes on the website or what goes on the platform is properly checked by the statutory bodies. One. Second, coming back to social media, the same parameters should be adopted, because the social media aggregators, these platforms, cannot claim immunity under Section 79, saying that okay, we do not have anything to do with this. You do have things to do with this because
you are restricting the voices of the people who may have a different opinion. Now, offending X religion on social media is fine and can be put on social media, but offending Y religion is problematic, and then that tweet gets deleted by the Twitter authorities. How is this a neutral platform then? So Sure. I think this is the background of what we need to do for regulating social media and OTT platforms. श्योर सो ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ भारत में नहीं है, ये पूरी दुनिया में फेस हो रही है कि किस तरीके से सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए या किस तरीके से जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस को बाईपास कर रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। भारत में भी हमने कंट्रोवर्सी देखी है बार बार, अभी रिसेंटली तांडव सीरीज पे काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। सो आयुष आनंद, इसमें जो कानूनी जो फ्रेमवर्क है हमारे पास जो मौजूद है अभी, जी। वो क्या है और क्या उसमें किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के बाकी देशों में वो कैसे डील करते हैं। दो मुद्दे हैं, सोशल मीडिया को कैसे डील करते हैं और दूसरा है जी। कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से उनसे कैसे डील किया जा रहा है। शुभेंदु सर ने जिस तरह बताया, तो ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो है ये दो तरह के वायलेशन में आ रहा है। एक तो जो कंटेंट है वो जिस तरह टीवी सीरियल्स सिनेमाज को हम रेगुलेट करते हैं, बिकॉज जो उसका कंटेंट है उसका इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे, और जो छोटे एज के जो बच्चे हैं उन पर बाय एंड लार्ज जो क्या प्रोटेक्टेड है सिनेमेटोग्राफी एक्ट में, या जो ब्रॉडकास्टिंग जो केबल टेलीविजन नेटवर्क का जो एक्ट है वो छोटे बच्चों पर एक्सेसिव क्राइम सीन्स को दिखाने पर इसको रेगुलेट करता है। तो हॉल्स में तो मतलब जो घुसने के वक्त तो किसी ना किसी की को तो पावर होता है, वो रोक भी सकता है, लेकिन ये जो इंटरनेट है ये तो किसी के भी हाथों में हमेशा अवेलेबल है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म दो तरह के वायलेशंस कर रहे हैं आज के डेट में, जिसके कारण ये रिक्वायरमेंट आ रही है। फर्स्ट वायलेशन इज दैट दे आर वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, बिकॉज दे आर पुटिंग द कंटेंट, जो वैसे चीजों को वो इंटरनेट पे डाल रहे हैं जो कि इलीगल है भारत में डालना, टू बी वेरी इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। किस और कानून के तहत इलीगल है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसका एक कानून में वो उस पर मैं आ रहा हूँ। और दूसरा, ये जो कंटेंट है, कोई भी कंटेंट हर एज के लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए। सिनेमा हॉल्स में तो वो है कि टिकट हम नहीं देंगे 18 साल से कम के बच्चों को। टेलीविजन चैनल्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस होता है, इस तरह के कंटेंट वाले मूवीज को आप इस पर्टिकुलर आवर के बाद चलाओगे। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट डलते हैं वो तो 24 घंटे चलते हैं। तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी भी है डायरेक्ट मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इस तरह के जो इंटरटेनमेंट मीडियम्स है के को ज्यादा मतलब डिसएडवांटेज में रखा जा रहा है, और ओटीटी वालों को ज्यादा फेवर किया जा रहा है। आप देखेंगे सेम एक्टर जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक मूवी रिलीज करता है तो उसके उस मूवी में 10 तरह की गंदी गालियां होती हैं, 10 तरह की ऐसी चीजें आपको सुनने मिलती है जो कि हम बोलचाल में यूजुअली नहीं करते हैं। वही सेम एक्टर, बहुत ही रिनाउंड एक्टर, जब वो एक मूवी में जो प्रॉपर्ली रिलीज होने वाली है थिएटर में, उसमें उन लैंग्वेजेस का यूज नहीं करता है। तो एक तो कंटेंट है, और दूसरा वो कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल होने के कारण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वायलेशन में जा रहा है। तो जो सोशल मीडिया की बात शुभेंदु सर ने बोली ओटीटी से अलग है। ओटीटी पे मैं आता हूं, पहले ओटीटी का मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे जाता हूं। जो ओटीटी है, ओटीटी पे रेगुलेशन लाने की बात चल रही है, लेकिन रेगुलेशन हम किस मेन एक्ट के अंदर लाना चाह रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास दो तरह के एक्ट है या तीन तरह के, टीवी के लिए केबल टेलीविजन का जो एक एक्ट है, उसके बाद सिनेमेटोग्राफी एक्ट है, और तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। इन्हीं तीनों एक्ट में से किसी भी एक्ट के अंदर हम इस रूल को बनाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ओटीटी एक ऐसा चीज हो चुका है जिसके लिए अब एक सेपरेट स्टैट्यूट की आवश्यकता है। एक लॉ का बेसिक प्रिजम्पशन है कि कोई भी जो रूल है वो पेरेंट एक्ट के स्कोप से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो ओटीटी का जो डायमेंशन है, जिस चीज को हम रेगुलेट करना चाह रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के भी दायरे से बाहर जाता है, सिनेमेटोग्राफी एक्ट के भी दायरे से बाहर चला जाता है, और केबल टेलीविजन को जो रेगुलेट करने वाला जो लॉ है ब्रॉडकास्टिंग वाला, उसके भी दायरे से बाहर चला जाता है। तो ओटीटी को इसको रेगुलेशन की नहीं जरूरत है, इसको स्टैट्यूटरी बैकअप की जरूरत है, इसको हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। इट्स नॉट लाइक वी हैव टू रेगुलेट समथिंग, वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट कि हम लोग इंटरनेट के युग में आ चुके हैं और अब सिनेमा देखने का और सीरियल देखने का तरीका बदल चुका है, हमें ये रियलाइज करना होगा।
अब हमें सिनेमा या टीवी देखने के लिए हॉल्स में या किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो देख सकते हैं। तो कोई भी वीडियो जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम इंटरनेट पे डाल रहे हैं, इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन की जरूरत है और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत एक सेपरेट एक्ट बनाने की जरूरत है और उसके लिए एक रेगुलेटर उस एक्ट के अंदर बनाने की जरूरत है, जो इंटरनेट पे जितने तरह के वीडियो, जो मेन स्ट्रीम इंटरनेट वेबसाइट्स जिसको हम बोलते हैं, डार्कनेट और डार्क वेब को हम नहीं रेगुलेट कर सकते। इंटरनेट के नेचर को भी समझने की चीज है। आप इंटरनेट को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं एक लेवल से ज्यादा, आप इंटरनेट को बहुत ज्यादा रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैसे वेबसाइट्स जो अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं और एक मेन स्ट्रीम वेबसाइट्स हैं, उनको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। जिस तरह हम लोग सारे न्यूज चैनल्स को रेगुलेट करते हैं, टीवी चैनल्स को रेगुलेट करते हैं, सिनेमा जो भी इंडस्ट्रीज है उनको रेगुलेट करते हैं, उस तरह ये भी एक इंडस्ट्री है। पहले तो इसको हम रिकॉग्नाइज करें कि भाई ये इंडस्ट्री है और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि बाकी सारे इंडस्ट्री से ये बड़ी हो चुकी फर्स्ट। तो इसके लिए मेरे हिसाब से रेगुलेशन नहीं, इसके रिकॉग्निशन की जरूरत है और इसके लिए प्रॉपर एक स्टैट्यूटरी बैकअप की जरूरत है, क्योंकि ये जो काम कर रहा है आज के डेट में हमारे पास या दुनिया के किसी भी देश के पास कोई एक कानून नहीं है जो इस चीज को डील करता है। तो इसके लिए एक स्टैट्यूटरी बैकअप चाहिए और वो फिर तमाम तरह की चीजें उसमें आ जाएंगी। लेकिन इसको समझने के लिए कि उसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, हमें अब फिर सोशल मीडिया और इस पर आ जाना चाहिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है। और हम जो रेगुलेट करने की बात बोलते हैं और बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता है? इसकी हिस्ट्री क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था। 2000 में क्या सोशल मीडिया था? क्या इंटरनेट था? इस तरह से क्या था? पोस्ट करते थे हर आदमी, अपना फोटो डालते थे? नहीं डालते थे। तो 2000 में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था, वो प्योर कॉमर्शियल रीजन से आया था कि अब जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहा है, जो कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, वो अब एक व्यक्ति दूसरे शहर जाकर या एक ऑफिस में बैठकर एक प्लेस पे साइन नहीं कर रहा है। तो 2000 का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, अगर आप उसको उल्टा कर देखेंगे तो वो आधी किताब, आधी बेयर एक्ट केवल डिजिटल सिग्नेचर एंड रिकॉग्निशन ऑफ ऑल दीज ईमेल्स कि ईमेल के थ्रू अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या साइन कर रहे हैं, भारत सरकार अपना सारा बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रही है, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैसे होगी, किस तरह से इंटरनेट के थ्रू जितने भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस हो रहे हैं, इन वेरी प्रिसाइज वे में बोले तो उसको रिकॉग्निशन देने के लिए कि उसको कोई आदमी कोर्ट में ये चैलेंज नहीं कर दे भाई ये तो इंटरनेट पे हुआ है, फिजिकली तो हुआ ही नहीं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि साइन कहाँ किया गया। तो उसको क्योर करने के लिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था। अब 2009 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जिस पोर्शन की सुहेंदु सर बात कर रहे हैं अभी और जिसके थ्रू हम रेगुलेट करने की का सोच सकते हैं, वो सारा अमेंडमेंट 2009 में आया है। और 2009 के अमेंडमेंट के प्रियम्बल को जब आप पढ़ेंगे, जो स्टेटमेंट ऑफ रीजंस एंड ऑब्जेक्ट्स को अब जब आप पढ़ोगे, तो उसमें इन सारी क्राइम्स का उल्लेख है कि नहीं, अब जो इंटरनेट के थ्रू ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो अब ये पोर्नोग्राफी वाला इशू आ रहा है, क्राइम को एग्रीवेट करने वाले पोस्ट्स आ रहे हैं, इन सारी तरह की चीजों की परिकल्पना है उस स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन में। लेकिन वो भी जो है वो केवल और केवल वैसे वेबसाइट्स को ध्यान में रखकर 2009 और 10 के समय हमारे देश में क्या था इंटरनेट पे, सोशल मीडिया का क्या, वो हम सबको पता है। उस समय जो जो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स थे उनको रेगुलेट करने के लिए, और जो ऐसे जो कुछ वेबसाइट्स जो रैंसम कॉल करते थे या कुछ ऐसे प्लेजराइज करते थे, उनको रेगुलेट करने के लिए हुआ। क्योंकि उस समय तक सोशल मीडिया का उदय इफेक्टिवली नहीं हुआ था। एक ऑर्कुट था, बट फेसबुक उस समय शुरू हुआ था 2009 के बाद से ही हम बोल सकते हैं। तो जो आज के डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उस समय इंटरमीडियरी के कंसेप्शन में ये सोशल मीडिया आएगा ये तो कभी था ही नहीं। अगर ये हम सब एज्यूम करके बैठे हैं कि ये जितने सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं ये इंटरमीडियरीज हैं तो इन पर केस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये उनका डिफेंस है। हम क्यों इस डिफेंस को लें? अगर आप डिफिनीशन में आपको अगर दिखाऊं आखिर ये इंटरमीडियरीज का डिफिनीशन क्या है, तो इंटरमीडियरीज का डिफिनीशन बहुत सिंपल है कि जिसके हाथ में कुछ नहीं है, जो बीच का है, तो उसको इसलिए प्रोटेक्ट कर दिया गया कि भाई उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। उसका एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, जैसे आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर्स मींस एयरटेल या जियो हो गया या फिर कोई भी एक हैथवे हो गया। अब कोई व्यक्ति हैथवे का वेबसाइट के सर्विसेज को यूज करके कोई इलीगल चीजें डाल दे ऑनलाइन, तो हैथवे को आप कैसे जेल ले जाओगे?
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आया था ये। आप जो डिफिनीशन पढ़ोगे, इसका जो ये डिफिनीशन क्लाउज है, मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा इसको, ये बहुत ही क्लियर कर देता है। ये सेक्शन 2W में इसका उल्लेख है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। और हम सबों को एक ये डिस्कोर्स करना होगा कि आखिर हम क्यों मान लेते हैं इसको इंटरमीडिएट। उस समय तो सोशल मीडिया था ही नहीं जब ये डिफिनीशन आया है। उसमें ये बोलता है कि विथ रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मींस अ पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन रिसीव्स, स्टोर्स और ट्रांसमिट्स दैट रिकॉर्ड एंड प्रोवाइड्स एनी सर्विस विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिकॉर्ड एंड इंक्लूड, क्या क्या आता है, मतलब किसी के बिहाफ पे अगर कोई कर रहा है उसमें क्या क्या इंक्लूड है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्च इंजन, ऑनलाइन पेमेंट साइट्स, ऑनलाइन ऑक्शन साइट, ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड साइबर कैफे। अब जितने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं ये तो इसमें है ही नहीं, हाँ, स्पेसिफिकली इनका नाम नहीं है। और इंटरमीडियरी का जो आप अगर लिटरली इंटरप्रिटेशन करें, इसका मतलब है आप बीच में है, इंटरमीडियरी है, मींस यू आर receiving something from someone and giving that same thing to somebody else. If you are doing something while keeping that thing in your possession, then itself that you can't you call are not yourself as an intermediary. fair तो point. एक तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये इंटरमीडियरी नहीं है। अगर इंटरमीडियरी है भी तो जो सेक्शन 79(1) में उनको प्रोटेक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, उसके बाद 79(2) है, 3 है, 4 है, उन तीनों में प्रोविजंस है कि आप इस एक्ट के सारे प्रोविजन का फॉलो करोगे, गवर्नमेंट के रेगुलेशन का फॉलो करोगे, तभी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये जो सारे ये लोग फेसबुक, ट्विटर और ये जो इस तरह के कंटेंट का रेगुलेशन कर रहे हैं, और आपको जान के आश्चर्य होगा, ट्विटर इतना बड़ा सोफिस्टिकेटेड अपने आप को डिक्लेयर करता है, कभी किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी, ट्विटर अगर आप उसको पॉर्न चाहिए, सस्ता पॉर्न चाहिए, और सबसे ज्यादा वो अवेलेबल ट्विटर पे है इजीली। और ट्विटर अगर अपने वीडियो कंटेंट में पोर्नोग्राफी को नहीं रेगुलेट कर पा रहा है, केवल पॉर्न नहीं है, उस पॉर्न के साथ लिंक रहता है, सॉलिसिट किया जाता है, और ऐसी ऐसी इलीगल चीजों को लेकर सोसाइटी को कॉल किया जाता है, इट्स काइंड ऑफ इंसाइटमेंट, एंड ट्विटर उसको रोक नहीं पा रहा है। तो इस केस में अगर मैं एग्रीव्ड हूं, अगर मेरा ऐसा कोई कंटेंट, मेरा प्राइवेट कंटेंट अगर कोई ट्विटर पे वीडियो डालता है, तो क्या मैं ट्विटर पर केस कर सकता हूं? हाँ, मैं कर सकता हूं। ये, और क्या सरकार ऐसा कर सकती है? सरकार भी ऐसा कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसका कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है। जैसे अगर कोई शेयर बाजार में कोई गड़बड़ कर रहा है, 10 का शेयर कुछ घपला कर रहा है, हर्षद मेहता टाइप का कोई स्कैम कर रहा है, तो एजेंसीज है जो उसको देखती है और कंट्रोल करती है। अगर सेबी या कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं रहती, तो आप कैसे शेयर बाजार के स्कैम को रोक सकते? बैंक्स क्या रोक सकती है? आरबीआई क्या रोक सकती है? नहीं रोक सकती। सेम चीज है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के साथ और ओटीटी के भी साथ। we lack government regulations, regulating authorities. रेगुलेशन बना देने से कुछ नहीं होगा। ठीक, point well taken. We will come back to you, Ayush and Shubhendu. आयुष ने तो पूरा डिमोलिश कर दिया कि ये इंटरमीडिएट है ही नहीं है। आई थिंक नो वन हैज मेड दिस पॉइंट अभी तक। मैंने किसी डिस्कशन में नहीं देखा कि ये फेसबुक और ट्विटर का जो क्लेम है इंटरमीडिएट होने का, वो फ्रॉड है, बिकॉज इट डज नॉट कंफर्म टू द एग्जिस्टिंग लॉज इन इंडिया। आज तक कहीं ऐसा केस ही नहीं कोई आया है, हम लोग बस ऐसा मान बैठे हैं। So coming back to you, Shubhendu, I was having a discussion with Arvind Kumar on the Tandav series and the representation of Dalits and different castes in these OTT platforms. And he said that these people claim that we have freedom of expression, there is artistic freedom and so on. But there are other provisions in the constitution which also says you have to maintain the dignity of the people. That is also the constitutional duty of the government, that you cannot allow demonization of any caste or community. So looking at the broader picture, we'll come back to the legalities again, but looking at the broader constitutional picture, because nowadays everyone is a constitutional patriot, So how do you argue or tell these constitutional patriots? By the way, patriot comes from patriarchy. That isn't the bloodline, the male bloodline, the blood and the soil, my bloodline and the soil, concept of pre-industrial nationalism kind of a thing. But coming to you, what is the overall picture, constitutional principles which are applicable here? So, constitutional patriots,
the problem with them is that they do selective reading of both the constitution as well as the other laws that are available in the country. Now, the problem with selective reading is that you one that you do not know the entire stuff, and two that when somebody tries to explain to you what is happening, you demonize that person. Uh, when we say that we have freedom of speech and expression, that also comes with reasonable restriction. The reasonable, the idea of reasonable restriction is to make sure that any such freedom which we try to seek for ourselves does not infringe upon the rights of others. Now, when we have a TV series which demonizes a particular caste and specifically Dalits, I think that that is also prohibited by the Constitution. There are laws in the country that say that specific laws in the country that say that you cannot demonize a particular caste, more so the depressed classes, the Dalits. So when I claim my freedom of speech and expression to voice my opinion, that opinion should not be infringing upon the rights of others. And more so when it is against Dalits, for whom there are special provisions, not just within the constitution, but also outside, and there are statutory provisions over there. The Supreme Court, in a number of judgments, has held that these reasonable, just like freedom of speech and expression is sacrosanct, reasonable restrictions go hand in hand. So you cannot have a situation where you claim freedom of speech and expression, and that freedom of speech and expression causes riots in the country. That freedom of speech and expression demonizes a particular community. That freedom of speech and expression causes public disorder. Public order is a very, very important thing. I mean, it has been described a number of times in the Constitution and in various Supreme Court judgments with regard to freedom of speech and expression. Public order is very, very, very important. So you cannot have a situation where you claim freedom of speech and expression and that disturbs the public order. No, I'm sorry, that is not going to happen. So all this freedom also comes with either restriction or duties. So maybe you do not want to go with the fundamental duties, but you will have to adhere to the restrictions, because in the same article where you claim freedom of speech and expression, the same article also talks about reasonable restriction. So I think that is what has to be kept in mind. I wanted to raise one more point, which happened, in fact, yesterday or day before yesterday. Cambridge Analytica, the CBI has booked Cambridge Analytica in a case that happened in September 2018, and the ministry, I think the Ministry of Information and Ministry of Electronics and IT, sought an opinion from the Additional Solicitor General as to whether we can prosecute Cambridge Analytica for an offense that was committed. The offense was that Cambridge Analytica, through an app or through a link which they linked with Facebook, collected data of millions of people across the globe and a number of people, I think some thousands of people in India. And this was right before the elections. So they collected data of people and stored it with themselves and then sold this data to other people. So I will go back to what Ayush said, that when you call yourself an intermediary, you do not store data of people. You do not store that data and sell it to other people. As an intermediary, if at all you are claiming your immunity as an intermediary under Section 79 of the Information Technology Act, the only mandate that you have is that you seek an information from somebody post something, some content over your website, and you just let it go to other people. If you store that for other purposes, including commercial, you cannot be called an intermediary. Then liability has to be fixed. And as Ayush rightly said, that we need a very, very effective regulator, and to make sure that these people, these big tech who work as intermediaries, do not go unpunished. So that is what I believe is
the way forward. And the second thing is that if at all we want to make an amendment in the Information Technology Act to make sure that we have a proper regulatory regime, I think we will have to first amend the definition clause of the IT Act, wherein we include under the intermediaries these social media platforms and content aggregators, and then go back to 79, section 79, and then reduce their immunity, or maybe don't give any immunity to them. If I am posting something on your platform and you are managing it, or you are storing it, or then you are censoring it, you should be responsible. You should be responsible for it. And at the same time, when you are censoring my content, you are also offending. You are also infringing upon my freedom of speech and expression. So you cannot claim to be an intermediary and at the same time infringe upon my freedom of speech and right to freedom of speech and expression, and then seek immunity under Section 79. So I think if at all we want to make an amendment in the parent act, the IT Act, I think we'll have to first make an amendment in Section 2W to include these social media platforms as intermediaries, and then remove the immunity granted to them under Section 79. वेल शुभेंदु, आपने सही बात बोली, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात बोली। मुझे याद है सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे तो कई स्टूडेंट्स ने कहा था कि वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, आर्टिकल दिस एंड दैट। मैंने कहा जिस तरीके का तुम लोगों का कॉन्सेप्शन है इक्वालिटी का, जो तुम लोग आर्टिकल को कोट कर रहे हो, उस तरीके से तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल इनऑपरेबल हो जाएगा अगर उस तरह से हम एकदम मैक्सिमलिस्ट डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी लगाने लगे तो। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको लेके क्या हम लीगल एक्शन ले सकते हैं? क्योंकि कुछ समय पहले एक और पैनलिस्ट ने, अभिजीत अय्यर मित्रा ने इस बात को बोला था कि द मोमेंट ट्विटर सेंसर्स एनी ऑफ द ट्वीट, you are free to hold them responsible for any content published on their platform. अगर आप एक ट्वीट को हटा रहे हैं या एक पोस्ट को हटा रहे हैं, तो मतलब आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर पोर्नोग्राफी भी बहुत आ रही है, अगर आपके अब्यूजेस बहुत आ रहे हैं, कुछ इलीगल एक्टिविटीज के पोस्ट आ रहे हैं, सो यू शुड स्टार्ट फाइलिंग केसेस अगेंस्ट इंडिविजुअल एम्प्लॉइज ऑफ द फेसबुक एंड ट्विटर। शुभेंदु, वो कितना फीजिबल है? आयुष, वो कितना फीजिबल है? सॉरी शुभेंदु, कम बैक टू यू। ये उसमें जो आईटी एक्ट एकमात्र एक बहुत कम एक्ट है ऐसे जो कि भारत के बाहर भी जो क्राइम हो रहा है उसको जो भी आदमी है उसको लायबल डिक्लेयर करते हैं। आईटी एक्ट में 2 प्रोविजन है। एक प्रोविजन है जो 80 या समथिंग है, वो बोलता है कि चाहे आप भारत कहीं भी हैं दुनिया में, चाहे इवन इफ यू आर आउटसाइड फ्रॉम इंडिया एंड इफ यू आर कमिटिंग समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, देन यू आर लायबल। तो कोई भी जो विदेशी नागरिक है वो केवल इस ग्राउंड पे कि भारत में हम नहीं रहते हैं, भारत में मेरा सर्वर नहीं है, वो भारत में होने वाले प्रोसिक्यूशन से नहीं बच सकता। एक दूसरा जो मिसलेनियस चैप्टर है आईटी एक्ट का लास्ट में, वहां कंपनीज के डायरेक्टर्स को लायबल बनाया गया है, कोई एम्प्लॉय नहीं। जो भी कंपनीज के जो अथॉरिटी है, जो कि सिग्नेटरीज हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं, जैसे इंडिया में है, तो जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए हम मार्क जुकरबर्ग को ही केस कर दें। मार्क जुकरबर्ग की एक टीम है जो इंडिया के हिंदी और डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस के कंटेंट को रेगुलेट करती है, जो कि इंडिया में है। तो वो जो है उन पर हम डायरेक्ट केस कर सकते हैं। ये एक्सप्लिसिट प्रोविजन है आईटी एक्ट में। इन एनी वे आईटी एक्ट में जब ये सारे प्रोविजंस डाले गए थे, तब ये सोशल मीडियाज और ऐसे प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ क्राइम कर सकते हैं, ऐसा कोई कंसेप्शन में नहीं था। ये सारे ऐसे वेबसाइट्स के लिए है जो ऐसे कुछ भी इलीगल कंटेंट डालते हैं वेबसाइट, या कुछ भी सर्वर चलाते हैं, डार्क नेट चलाते हैं, उसके लिए था। उसको हम सोशल मीडिया के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। और वो इंटरमीडिएरीज नहीं है, हम ये मान के चले, केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें इन्वेस्टिगेशन का पावर लोकल पुलिस को दिया हुआ है, और लोकल पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन इस तरह का ऑफेंस का नहीं कर सकती है। उसके 2-3 रीजन है। पहला तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा, वो जब तक इन्वेस्टिगेट करने का नोटिस डालेगी या कुछ भी करेगी, तो ऐसे जितने कंटेंट हैं वो एक बार में चुटकी के साथ सारे गायब हो जाएंगे, और लोकल मीडिया उसको स्टोर नहीं कर सकती, उसका डायरेक्शन नहीं दे सकती है। तो आईटी एक्ट के जितने ऑफेंस हैं, इट नीड्स अ सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन।
उसका एक और कारण है, क्योंकि ये जो ऑफेंस है ये एक पर्टिकुलर थाने के जुरिस्डिक्शन में नहीं हो रहा है। ये जो ऑफेंस है एक साथ पूरे भारत में हो रहा है, इनफैक्ट पूरे दुनिया में हो रहा है अगर हम बोले तो किसी एक लोकल पुलिस स्टेशन को कैसे जुरिस्डिक्शन है? सपोजिटली आपके बारे में किसी ने एक डिफेमेटरी पोस्ट जेएनयू के किसी लड़के ने उचक्के ने डाल दिया, ठीक है? आपको अब केस करना है, आप उस समय बैठे हुए हैं बंगाल में, ठीक है? आप बंगाल में भी केस कर सकते हैं, आपके घर वाले कहीं हैं उड़ीसा में, उड़ीसा के क्योंकि वहां भी तो दिखा उनको, तो इस तरह हर थाने का जुरिस्डिक्शन हो जाता है उस केस को लेकर। तो हर पुलिस वाले को ये राइट है कि उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जब सबको राइट है कि हमको कर सकते हैं, तुम इस काम करो, तो इफेक्टिवली कोई नहीं करता है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक ऑफेंस है, इसको हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये एक स्पेसिफिक बिजनेस है इनफैक्ट। और एक बात जो हम सबके डिस्कशन से छूट रही है, ये जो फेसबुक, सोशल मीडिया और ओटीटी है, ये केवल कंटेंट रेगुलेटर नहीं है, ये मार्केट भी जनरेट कर रहा है। ये अपना कॉमर्स कैसे जनरेट कर रहा है? आपके पोस्ट को बूस्ट कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। तो आपके पोस्ट को हम ज्यादा दिखाएंगे, उससे वो रेवेन्यू भी कमा रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्ट के जो बहुत सारी चीजें जिनका आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, जो कि इलीगल है, जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, लीकर है, मेडिसिन है, और बहुत सारे इलेक्शन के समय पॉलिटिकल कैंपेन, ये एडवर्टाइजमेंट इसका है, रेगुलेटेड है कंप्लीटली इलेक्शन कमीशन का। इतना आप कॉस्टिंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा कॉस्टिंग आप नहीं कर सकते, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। लेकिन फेसबुक के थ्रू तो हम करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, कोई रेगुलेशन नहीं है। तो हमें एक कंप्लीट रेगुलेटर की जरूरत है। और आईटी एक्ट में प्रोविजन है 66 69 में 60, एक्चुअली आईटी एक्ट जो बना है वो साइबर सिक्योरिटी और ऐसे इलीगल कंटेंट्स को हटाने के लिए बना था। ये जो चीज है इसके लिए हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो है उसके अंदर रेगुलेटर बनाकर भी इसको किया जा सकता है। उसमें बिल्कुल भी कहीं हमें ऐसा समझने की नहीं जरूरत है इनको इम्यूनिटी मिली हुई, बिल्कुल नहीं इम्यूनिटी है। कोई भी गलत काम जो चैप्टर 6 के अंदर आईटी एक्ट में है, जो कि लगभग 14 से 15 ऑफेंसेस हैं, ये सारे वेबसाइट्स करते हैं और सबके अगेंस्ट केस किया जा सकता है। अगर कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो या ईमानदार केस लड़ने वाला हो, और हमने बहुत सारे कंप्लेंट किए हैं, यहाँ साइबर क्राइम डिवीजन जो है दिल्ली पुलिस के बहुत सारे कंप्लेंट करते हैं, लेकिन वो ऐसे रिसीविंग दे देते हैं, उस पर कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। और हम उसे ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो नो हाउ नहीं है। और उसके अगर वो नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन, तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी नहीं जा सकते। मैजिस्ट्रेट को इतनी फुर्सत नहीं है कि इस तरह की चीजों में जाए और इन्वेस्टिगेशन करवाए उस लोकल पुलिस से। तो गवर्नमेंट को इस बात पे सोचना चाहिए और प्रॉपर रेगुलेटरी एजेंसी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये ऑल इंडिया ऑफेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आयुष, आप तो जो सारा नैरेटिव है इसको डिमोलिश कर दे रहे हैं कि जो ये इन्होंने इमेज क्रिएट किया हुआ है कि हमें इम्यूनिटी प्राप्त है या हमें जो है इन सब, और आपने बताया किस तरीके से ये जो है मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दे आर इन ऑलरेडी इन वायलेशन ऑफ सेवरल रूल्स ऑफ द लैंड, यू नो, सेवरल लॉ ऑफ द लैंड, इंक्लूडिंग द कैंपेनिंग एडवर्टीजमेंट ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम. But Shumendu, coming to you, what Ayush is saying, he's basically pointing out that we need to modernize our legal infrastructure. We need to build capacity to deal with this new kind of issue which we are facing now. So, suppose if you have to draft a law to regulate social media and also the OTT platforms, they're two different things, but what are the main things you would like to suggest out there? If we have to draft a law to regulate social media, I think the first thing that we need to do is to if we have to amend the existing act, I think first thing is that we have to bring within these platforms within the ambit of the IT Act. Let us put them in the definition clause in section 2W as intermediaries, and then fix a responsibility over them under section 79, and don't put them, don't segregate them as immune. So how can we do that is that suppose there is a social media platform, suppose there is Twitter or Facebook, and they receive, for example, 200 complaints in a month against a content or against any of the content that they have on their platform, then their immunity is waived off. So let us put a number to the number of complaints that they receive,
and then set a timeline that if they do not resolve these issues within 30 days or 15 days, they would be liable to be prosecuted by the agencies. Only then this is going to happen. Unless you fix a responsibility over these people, that nothing is going to happen. Take away their immunity and fix responsibility. And it can happen only when there is a regulatory authority. So you have to first appoint a regulatory authority. You have to have officers who know what exactly is happening. These officers, these nodal officers would then take a stock of the complaints filed with these intermediaries as to how many complaints they have received and what is the nature of the complaint. Have they resolved these problems or not? If not, then they would be liable. So this can happen in case of violation of the provisions of IT Act. Similarly, when you have a regulator for an OTT platform, first things first, that every content on OTT has to go through a check. Now, there can be a content which, suppose on YouTube, I produce something and I put it on YouTube. Now, YouTube may say that I am not responsible for what Shubhendu is putting on this platform. But YouTube has in the past also taken down content from its website. Now, if you have the power to take down content from your website, you should be answerable to the authorities when you do not take down things, when you have several complaints lying against such contents. So that way you have to fix a responsibility over there. Third is that whatever TV series or movie or any of such content is produced in the country, they should be subjected to either the Cinematograph Act or the Cable TV Regulation Act, and only then be certified to be produced, broadcast over OTT platforms. So unless you have a content regulating mechanism, which is like the Cinematograph Act, and the second is the media regulating. One is regulating the content, the other is regulating the media. Media is an OTT platform like Amazon or Voot or Netflix. So you have to regulate. In case of OTTs, it is more complex because you have to then have two regulatory bodies. One which will regulate the content, what goes on, and the second which will regulate these people who are trying to subvert the law and claim immunity under 79, saying that, oh, we are just aggregators, we are just intermediaries, we have no role to play over there. Of course, you have a role to play over there because you decide what goes on your website and you decide what does not go on your website. And in process of the same, you are also making money out of it. So there has to be this thing. The third and the most important thing is that what Ayush has pointed out, that our police is not equipped enough to deal with such cases. For that, you will have to have a policing system, a system which will invest a nodal policing system which will investigate into these kinds of issues, see if there are offenses being committed, and then take action against these platforms as well as individuals who violate the laws. So you will have to have a proper, let me give you an example. There are separate police wings for investigating different types of offenses: crime against women, crime against SCs and STs. You have all sorts of different departments within the policing system. You will also need to have such a thing, which would be then responsible for answering to the higher authorities, which would be a nodal center, which maybe officers sitting in Delhi who would see whether investigation has taken place or whether the investigation is going on in the correct direction or not. So this kind of because it is so enormous, the amount of information that goes on these platforms, the number of contents generated by these platforms, and the viewers, the subscribers, it's huge. I mean, when you have such a huge number of both the producers as well as the users, you can imagine the amount of
or the number of offenses being committed over there and which goes unnoticed by a lot of people. Fair point. So, मैं Bindu, मैं इसमें that is an important point you are making. But let's see, the capacity of the state capacity in this country is so low. We anyways have so millions of vacancies across the government sector. Even the police vacancies are there. You go to the state, in every state, irrespective of the party in power, you can't even do the basic policing. Have the lowest per capita ratio of the police in the world. I don't know how we will do that because we just don't have the state capacity to enforce those things. But स्पेशली perhaps we need to bring in some artificial intelligence or whatever to deal with this kind of crime. So Ayush, coming to you, what do you think कि जो शुभेंदु ने बोला कि किस तरीके के कानून हमको चाहिए और what can be the way forward? नहीं, इसमें जिस तरह ये आईटी एक्ट कैसे आया, भारत सरकार को सडनली कैसे रियलाइजेशन हुआ, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस का एक मॉडल लॉ था जिसको सारे देशों को भेजा गया कि इस तरह का हो रहा है, आप ऐसा करो। इसमें आइडियली तो ये एक वर्ल्ड वाइड फेनोमेना है, इसमें आइडियली यूएन को एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस कन्वीन करना चाहिए और एक मॉडल ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए। जिस तरह आईटी एक्ट जो आज के डेट में हमारे पास है, उसका ड्राफ्ट भी यूएन से आया था। जिस तरह आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ड्राफ्ट हैं, वो यूएन से भेजा गया था ताकि पूरी दुनिया में एक होमोजेनिसिटी रहे और सारी कंपनीज को एक स्ट्रांग मैसेज जाए कि भैया ये नहीं करना है। और अगर आप इसके लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में जाएं तो सोशल मीडिया और जैसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बिग जायंट्स बनना शुरू हुए हैं 2015 के बाद से। तो 2015 के बाद से कम 4 से 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने इसको बाय लॉ रेगुलेट करने की कोशिश की। अभी तक हम भारत में केवल रूल्स या आईटी एक्ट के अंदर, और आईटी एक्ट हम सबको लगता है कि नहीं, आईटी एक्ट में सारा प्रोविजन है, उसी के अंदर ये सारे रेगुलेट होने चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आईटी एक्ट तो बना ही नहीं है इनको रेगुलेट करने के लिए। तो हमें सीखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में सबसे पहले एक लॉ लाया। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में 2015 में एक आया ऑनलाइन सेफ्टी करके। वहां के जो स्कूली बच्चे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जो स्कूली बच्चे होते हैं सबका सोशल मीडिया अकाउंट होता है। वो अकाउंट क्या करते हैं, किसी एक बच्चे को चिढ़ाने के लिए या बुली करने के लिए उसके नाम का एक पैरोडी अकाउंट बनाते हैं। ये मेरे कॉलेज में भी हुआ है और भारत के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है। उसके नाम से एक पेज बना देंगे और उस बच्चे की इतनी बुलिंग हुई कि उसने सुसाइड कर लिया, एक छोटा सा बच्चा था। तो वहां एक लॉ बना ऑस्ट्रेलिया में, इनहैंसिंग ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2015 में। उसके बाद सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट उसमें 2019 में भी आया है। तो ये स्पेशली ऑनलाइन जो कंटेंट्स हैं और ऐसे जो वेबसाइट्स हैं जो कि ऐसे कंटेंट्स डालते हैं, उसको रेगुलेट करने की प्रॉपर्ली उसमें रेगुलेटरी बॉडी का प्रोविजन है, फाइन है, पनिशमेंट है, ये सब चीज है। इसी तरह सिंगापुर का भी एक 2019 का लॉ है जो कि बहुत अच्छा है, उसको भी पढ़ने की जरूरत है। उसमें भी सेम चीज है, उसको बोला गया प्रोटेक्टिंग फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड एंड मैनिपुलेशन। कि हम लोग जो बोलते हैं ना कि फेक न्यूज है, फेक न्यूज है, फेक न्यूज फैल तो सोशल मीडिया के थ्रू रहा है। तो इसको स्पेसिफिकली फोकस करते हुए किस तरह उसको रेगुलेट किया जाए, उसको 2019 का एक लॉ है। जर्मनी ने भी एक बहुत अच्छा लॉ 2017 में या समथिंग बनाया था। उसके कुछ प्रोविजंस को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, बट बाय एंड लार्ज जो जर्मनी का जो प्रोविजन है छोटा है और बहुत ही अच्छा है और केवल सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। यूरोपियन यूनियन का के डेटा प्रोटेक्शन का है, बट दैट इज नॉट इफेक्टिव। तो मेरा ये कहना है कि आईटी एक्ट इज समथिंग which was earlier from the conception of social media and the micro blogging websites. तो आईटी एक्ट को केवल हम साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, हैकिंग उसके लिए रहने दें, क्योंकि आईटी एक्ट में भी बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज बनाने का प्रोविजन है। और उसमें जो सर्ट हम लोग सुनते हैं, जो सडन साइबर हैकिंग को रोकने के लिए भारत सरकार की बहुत इफिशिएंट टीम है, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोग जिनको हम नहीं जानते हैं। और हमारे भारत का जो हम लोग इतना अच्छे से ऑनलाइन सिस्टम यूज कर पाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो अपने लाखों और करोड़ों की नौकरी छोड़ के भारत सरकार के लिए सर्विसेज दे रहे हैं। और बहुत अच्छे से साइबर हैकिंग को भारत सरकार मैनेज करती है, जिस तरह से चाइना डे टू डे हमारे देश पे साइबर स्पेस पे हमला करते रहता है। तो सोशल मीडिया को रेगुलेट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, प्रोविजन है। हम चाहें, बस वो विल पावर की कमी है कि हमें उसको रिकॉग्नाइज करना है। एक न्यूसेंस आ गई है हमारे सोसाइटी में 2015-16 के बाद, उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, इन देशों से सीखना है और हमें इसको पिन पॉइंट करके और इस बात पर प्रेशर देना है कि इस पर लॉ लाओ। अब रेगुलेशंस और रूल से ऊपर जा जाओ, क्योंकि लॉ या आप रेगुलेशंस लाओगे, रूल्स लाओगे, उसको चैलेंज करना इजी होता है। और ये जो इंटरनेट जायंट्स हैं, बहुत बड़ी कंपनी, तो भारत सरकार को यूएन को एक रिक्वेस्ट करना चाहिए, जिस तरह हम लोग डिफरेंट
इंटरनेशनल इशूज पर यूएन में लीड ले रहे हैं, जैसे सोलर अलायंस का हमने लिया, उसी तरह इंटरनेट और जो सोशल मीडिया का ये जो न्यूसेंस है, इसको लेकर भी यूएन को लेटर लिखकर एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस कन्वेन करवाना चाहिए और एक मॉडल ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए। और यूएन अडॉप्ट करे ना करे, हम तो अपने देश में उसे अडॉप्ट करें ही। ओटीटी के लिए अलग और सोशल मीडिया और सारे वेबसाइट के कंटेंट्स के लिए एक अलग लॉ चाहिए, इन चारों देश को पढ़ते हुए। मेरा ये कहना है। सही बात है आयुष, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत में इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। एक तो मुझे लगता है कि लॉबिंग भी हो रही है, ये जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, इनका ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो इंटरफेस है, उसने कई लोगों ने कहा है कि कुछ ज्यादा ही इंटरफेस हो चुका है। आधार का जो जजमेंट था, आधार के जजमेंट को जो लोगों ने चैलेंज किया, जो लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं आधार का सिस्टम जो भारत सरकार का वो खराब है, अगर आपको सीरियसली देखोगे वो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा ऐसे इंटरनेट जायंट्स का ही था जो नहीं चाहते थे कि भारत सरकार अपनी एक ऐसी डेटाबेस और डिपेंडेंसी हमारे ऊपर से खत्म कर ले। जायंट्स तो हैं ही, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, लेकिन हम पब्लिक डिस्कोर्स में ये चीजें आनी चाहिए, लॉ की डिमांड होनी चाहिए। जिस तरह वुमेन सेफ्टी के लिए हमने डिमांड किया और जो अमेंडमेंट आया, विशाखा गाइडलाइन आया, सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट गाइडलाइंस आया और लॉ आया, उसी तरह यहाँ भी हमें लॉ चाहिए। जी, पॉइंट वेल टेकन। मुझे लगता है कि एक तो वो है कि ब्यूरोक्रेट्स को इतना उन पे हमें देखना पड़ेगा कि जो लोग इसको रेगुलेट कर रहे हैं, इस समय जो देख रहे हैं, उनको थोड़ा इम्यून करना पड़ेगा इन कंपनीज के इन्फ्लुएंस से। दूसरा एक, मुझे नहीं लगता कि अभी हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे सांसदों ने, हमारे विधायकों ने इसको सीरियसली लिया है। सिर्फ तेजस्वी सूर्या को छोड़ के किसी भी पार्लियामेंटेरियन ने इस पर आवाज तक नहीं उठाई है अभी तक। सो थैंक यू शुभेंदु एंड आयुष फॉर giving your time for this wonderful discussion and pointing out certain points which are not discussed in public discourse. We don't know why. And thank you, audience, for listening to us. And keep supporting us. Please subscribe the channel. And I'm also on Patreon. These days, I'm discussing a book by Jan Morris, Why the West Rules. So you can also check out the link given in the description. Thank you. Thank you.